Dear student, this is Shailesh Kumar, and today in this video we are going to learn the questions of simplification. Those are relating to the board mass. It means those are based on the basically board mass formation. So let us start. What is the board mass? Board mass is a term in which we consider B for bracket, O for off or order, and D for division, M for multiplication, and A for addition, and S for subtraction. So these were the meaning of BODMAS. Now as this is written that B is first, O is second, D is third, M is on fourth position, A is on fifth position, and S is on sixth position. We will solve these terms as per given in the board mass. So if we get a sum just like 5 plus 7 minus 2, then firstly what we will do, here you will see that there is addition and subtraction. So as per the board mass, which operation is coming at the first number, addition or subtraction? There A is before the subtraction, so we will add it first and subtract the answer after that. So as per this formula, I will add 5 plus 7, that is 12, and minus 2, then 10. In this way we will solve all the question of based on this board mass formation of the simplification. Thank you. Now let me introduce you that how many type of brackets are there. The first bracket is var bracket, after that parenthesis or the small bracket. This is called the curly bracket and this is called the square bracket. So we will solve the operation given in under these bracket as per this written order. Firstly I will solve this, after that this, then on the third number is this, and after the in the last we will solve the square bracket. So how? Let us see. If it is given to you, then you will see which bracket is there. There is parenthesis or the smallest bracket and the square bracket. So firstly, as per the given sequence, I will solve the operation given under the smaller bracket, that is 2 minus 3. So 2 minus 3, that is minus 1 plus 7. So now minus 1 plus 7, that is 7 minus 1, it means 6. Similarly, so in this way we will solve the operations under the bracket. So firstly I solve the smaller bracket, after that come to the square bracket. So in order to solve the all question of the simplification, we must know that which order of the bracket to be adopted for the solution. बच्चों आज हम इसमें जो क्वेश्चन करने हैं वो बोर्ड मास के क्वेश्चन करेंगे. ये क्वेश्चन बोर्ड मास पे निर्धारित है. बोर्ड मास मतलब बी फॉर ब्रैकेट, ओ मीन ऑफ या ऑर्डर, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन. सो जिस तरह से ये हमको ऑर्डर दिया हुआ है हमने उसी तरह से इसको सोल्यूशन करना है. अगर हमारे पास ब्रैकेट पहले आती है तो हमने इसके मुताबिक हमने ब्रैकेट को पहले हल करना है, ऑफ को उसके बाद में, डिवाइड्स को उसके बाद में, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद में, एडिशन को उसके बाद में और सब्ट्रैक्शन को उसके बाद में. इसके लिए मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ. जैसे ही आपके पास दिया हुआ है 5 प्लस 7, तो 5 प्लस 7 माइनस 2, यहाँ पे कितने ऑपरेशन हैं? एक तो एडिशन का ऑपरेशन है और एक सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है. तो आप दिए हुए फार्मूले के मुताबिक किसको पहले हल करोगे? सब्ट्रैक्शन को हल करोगे या एडिशन को हल करोगे? हमने फार्मूला देखा, यहाँ पे एडिशन पहले आता है और सब्ट्रैक्शन बाद में आता है. तो हमने पहले एडिशन को हल करना है. एडिशन को हल करने के लिए 5 प्लस 7, पहले मैं इनको जोड़ूंगा. 5 प्लस 7 क्या होता है? 12. 5 प्लस 7 12. उसके बाद में
-2 लिख दिया मैंने। और अब मेरे नंबर है एडिशन के बाद मेरे को हल करना है सब्ट्रैक्शन। 12 - 2 दैट इज 12 - 2, 2 होता है 10। तो इस तरह से हमने इस बोर्ड मास ऑपरेशन को यूज करते हुए कोई भी सवाल हल करना है। नाउ उसके बाद में हमारे पास आता है ब्रैकेट्स। तो हमारे पास 3 तरह की ब्रैकेट होती है। इसको बोलते हैं बार ब्रैकेट, इसको छोटी ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट और इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। तो हमने इसको भी इसी क्रम में हल करना है। तो जैसे पहले हम इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, फिर इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को, ये नहीं होगा कि हमको 2-3 ब्रैकेट दी हुई हैं तो हम अपनी मर्जी से किसी भी ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले हमने किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको। हम ये क्वेश्चन लेते हैं, ये है क्वेश्चन कर्ल ब्रैकेट अंडर, उसके बाद में है ये स्मॉल ब्रैकेट 2 - 3, उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज +7। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, आफ्टर दैट ब्रैकेट इज क्लोज्ड। नाउ सो सबसे पहले हम किस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, वी विल सॉल्व द स्मॉल ब्रैकेट 2 - 3। तो 2 जो ब्रैकेट के बीच में दिया 2 - 3, इसमें 2 में से 3 हम लेस करेंगे तो क्या आएगा -1। ओके, -1, उसके बाद +7 लिख दिया। तो उसके बाद हम ब्रैकेट हमारी खत्म हो गई है। -1 + 7 यानी 7 - 1, तो 7 - 1 क्या होता है 6। ठीक है, 6। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 6। इस तरह से हमने दिए हुए क्रम में ही ब्रैकेट को हल करना है, अपनी मर्जी से ब्रैकेटों के क्रम को छेड़ना नहीं है, अन्यथा हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। Now students, we are going to solve these given 4 questions. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. You will see in these questions, all the questions are based on the board mass. You will see here the brackets, small bracket, and this is the square bracket, multiplication, subtractions are involving there. In this second question, you will see the square bracket, the small bracket, division, multiplication, subtraction is there. And same as in third and same as in fourth. Okay, so as you can see that everything is there: bracket, division, multiplication, addition and subtraction. This. Okay, so let us start to solve this question using the rule. हाँ बच्चों, अब हमारे पास ये 4 क्वेश्चन हैं जो कि हमने हल करने हैं। ये 4 के 4 क्वेश्चन बोर्ड मास पर ही निर्धारित हैं, तो हम बोर्ड मास का फॉर्मूला यूज करके इन सबको हल करेंगे। तो ये देखिए, तो जैसे पहला क्वेश्चन ये है, यहाँ पे है मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। तो मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, आफ्टर दैट सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम, स्मॉल ब्रैकेट है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है, स्मॉल ब्रैकेट है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है और मल्टीप्लिकेशन भी है। तो इसी तरह अगले प्रश्न में भी है और नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। तो हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और बोर्ड मास की एप्लीकेशन से हम इसको हल करके अपने उत्तर तक पहुंचेंगे। Now we are on first question. Here 15 multiply square bracket 28 minus cut small bracket including 17 minus 12 and square bracket. So as per the rule, first of all we will solve the operation given under the smallest bracket. So I will write all the term as it is and solve the given operation under the smaller bracket. So first of all I will find the answer for 17 minus 12. So 17 minus 12, that is 5. So the answer is 5. Now 15 multiply 28 minus 5. Now after solution, after the getting the answer in the small bracket, I will skip the bracket. Now I have to deal with the bracket, that is square bracket. Now 15 multiply
28 minus 5 23. Now 15 multiply 23, that is, now we have to multiply 15 by 23. 345. So the answer is 345. So in this way we can find the answer. तो अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 15 मल्टीप्लाई ब्रैकेट जो है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 28 माइनस स्मॉल ब्रैकेट उसके बाद में बिग स्क्वायर ब्रैकेट. सो सबसे पहले एज पर द गिवन रूल हम किसको हल करेंगे, हम जो छोटी ब्रैकेट है उसको हल करेंगे. तो छोटी ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है 17 माइनस 12, तो 17 माइनस 12 क्या होता है 5. तो हमने यहाँ पे 5 लिख लिया. ओके, उसके बाद में फिर 15 मल्टीप्लाई 28 माइनस 5. अब आप कहेंगे कि ये ब्रैकेट कहाँ गई. जब हमने ब्रैकेट के अंदर का काम हल कर लिया तो हम ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. तो हमारे पास क्या रह गया ओनली 5. अब ब्रैकेट हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको लगा दिया. नाउ अब हमारे पास हल करने के लिए क्या है ब्रैकेट. कौन सी ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट. तो स्क्वायर ब्रैकेट को हल करेंगे 28 माइनस 5 दैट इज 23. तो अब जब हमने इसको हल कर लिया है तो हम इसको भी ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे. तो क्या रह गया ओनली 23. तो 15 मल्टीप्लाई 23, इसका आंसर क्या होता है मल्टीप्लाई करने पर 345 आता है. इस तरह से हमने इस सम को हल कर लिया. तो 345 इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.